Good evening, guys. This is Aniruddha, and I welcome you everyone to India's best and biggest online education platform, the one and only Unacademy. Let me know in the live chat section, guys, whether I am perfectly audible and visible to all of you people so that we can begin this session. Quickly, guys, once let me know in the live chat section whether I am perfectly audible and visible. So we are here with the mock test on irrigation engineering. I had already posted the link of it way back in the community section actually. So let me just post it over here in the Telegram channels here. By the way, guys, in case you did not follow me yet on the Unacademy app, just do follow me right now in case you did not follow me yet. Okay. Irrigation engineering mock test is definitely live. Here we are going to evaluate what we have learned so far. अभी तक हम जो भी सीखे हैं in the past 4-5 days, we are going to have an evaluation of those particular things कि हम basically क्या चीज सीखे हैं यहाँ पे. So I want everybody to join me live over here in this particular session. Quickly, guys, in case you did not follow me yet on the app, just do follow me on the app. And tomorrow is the last date for joining Unacademy iconic subscription with this iconic 39% discount. Code वही है ANR10, but discount आपको 39% का मिलने वाला है, which is huge, guys. Okay. And Lite Plus and Iconic, we have 3 subscriptions. Lite में आपको ANR10 लगा के और coins का इस्तेमाल करके, if you take the Lite actually, कोड का इस्तेमाल जरूर करना ANR10. और अगर आप लाइट लेते हो सब्सक्रिप्शन तो आपको आई थिंक इसका फीस पड़ता है 1200 रुपये. 1200 रुपीज में आपको सारे के सारे जो चीजें हैं विच इज यू आर गेटिंग. इट्स ह्यूज गाइस. 1200 रुपीज में आपको 100+ मॉक टेस्ट मिल रहा है. और क्या ही चाहिए सर. 100+ mock test with complete video solution to each and every question you are getting, which is definitely huge. 1 second, guys, just let me notification. Yes sir, if you are new to this particular channel, hit the subscribe button and turn the bell icon so that you never miss out any of the notifications. In iconic program, apart from what you are getting in the plus programs, आपको कुछ और benefits भी साथ साथ मिल रहा है, like 8000 पेज की printed study material as well as your this particular thing. Hello Shivangi, good evening. And Unacademy Ask It Out feature is going to allow you to post up to 3 doubts, and you can have actually 2 additional doubts also while waiting for your solution, which is huge. Hello Saddam Khan. And congratulations to all the toppers who have prepared GATE in Engineering Services flying colors. Getting extended validity and everything is in front of you now. That's nice. स्पेशल क्लासेस हर रोज चल रहा है ऐप पे, जरूर फॉलो कर लेना. PYQ सीरीज चल रहा है ऐप पे. करंटली स्टार्टेड विथ एप्टीट्यूड, एंड सिंस आई टीच ऑल द सब्जेक्ट्स इन सिविल इंजीनियरिंग, तो एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का PYQ करवा दूंगा. डेफिनेटली आई थिंक इट वुड हेल्प यू. टारगेट विजन बैचेस है, ज्वाइन कर लेना. चलिए सर शुरू करते, इन केस यू डिड नॉट स्टार्ट इट. A canal was designed to supply the irrigation needs of 1000 hectare of land growing rice of 140 days base period and having a delta of 130 centimeter. The canal water is also used to irrigate wheat of base period 119 days, having a delta of 50 centimeter. Then the area in hectare that can be irrigated is. Quickly let me know in the right section. We have done similar type of problems over here. हम सर ऑलरेडी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो है कर चुके हैं. So please tell me, guys, that what is the correct answer that we are getting over here. Jaldi se. Quickly, everybody, please tell me what's the answer that you are getting. जल्दी से सर थोड़ा बताइए मुझे कि क्या है आंसर. और आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड इस तरीके के क्वेश्चन जो लोग सर क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी, हम ये क्वेश्चंस काफी सारे टाइम्स कर चुके. लेट मी ऑल्सो पोस्ट इट इन द other sessions, other telegrams and everywhere, so that more and more people can come and join this most important series. Ensure your marks over here, guys. I want the answer quickly, guys. Please tell me what's the correct answer over here. जल्दी से सर, टाइम निकलता जा रहा है. जल्दी से सर आंसर कर दीजिए. आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है. वक्त बर्बाद ना करके सर आंसर कर दीजिए क्विकली. Already we have. Yes, so Arnab, I am getting the first answer from Arnab, and Arnab is telling that the answer is your option D. So let's see whether the option is actually option D or not.
तो हम लोग आपको बोले थे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम किए थे इफ यू रिमेंबर, एंड द मेन मोटो ऑफ दिस क्वेश्चन वाज द कॉन्सेप्ट वाज कि सेम ही कैनल, एक ही कैनल सर एक बार राइस को पानी सप्लाई कर रहा है और एक बार व्हीट को पानी सप्लाई कर रहा है. सेम ही कैनल इज सप्लाइंग वाटर वंस टू राइस एंड वंस टू व्हीट, राइट. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन द क्लासेस सो फार. तो सर जो लोग क्लास नहीं किए उनके लिए मेरे दिल में एक ही चीज है, तरस. फाइन. सो प्लीज टेल मी व्हाट्स द कॉमन थिंग इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर थिंग सर. क्या दोनों में कॉमन है सर? दोनों में कॉमन है क्यू आर एंड क्यू डब्ल्यू, दैट इज द डिस्चार्ज. सेम ही कैनल सर. ये 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन है सर. 2 मार्क्स. ओके. सो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, इफ यू रिमेंबर, दैट ड्यूटी इनटू डेल्टा इज 864 बी, राइट. अंडरस्टैंडिंग. ड्यूटी इनटू डेल्टा इज 864 बी, और ड्यूटी का मतलब होता है एरिया इनटू डिस्चार्ज, राइट. इनटू डेल्टा 864 बी. चलिए सर देखते हैं. हम तो देख रहे हैं सर. डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या है यहां पे? डिस्चार्ज इज इक्वल टू होगा आपका एरिया इंटू डेल्टा बाई 864 बी. ओके रहे मत. ओके. ए इंटू डेल्टा बाई 864 बी, दिस इज द डिस्चार्ज, राइट. अब मैंने क्या कहा? डिस्चार्ज फॉर राइस इज इक्वल टू डिस्चार्ज फॉर व्हीट. तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपके पास आ गया, ए इंटू डेल्टा बाई 864 बी. तो सर उसी के जरिए कैलकुलेट करना. ए डेल्टा ए आर डेल्टा आर 864 बी आर फॉर राइस, that is equal to A of wheat delta of wheat 864 B of wheat. 864 कैंसिल हो गया. एरिया फॉर राइस कितना है गाइस? एरिया फॉर राइस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1000 हेक्टेयर. डेल्टा ऑफ राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 130 सेंटीमीटर. बेस पीरियड ऑफ राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन 140 डेज. एरिया ऑफ व्हीट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि यहां पे if the canal water is also used to irrigate wheat of the base period this, then the area in hectare that can be irrigated. कितने हेक्टेयर एरिया में मैं व्हीट इरिगेट कर पाऊंगा वही कैनल के डिस्चार्ज से. तो डेल्टा ऑफ व्हीट इज गिवन 50 सेंटीमीटर एंड बेस पीरियड ऑफ व्हीट इज गिवन 119 दिन. 7 से 17, 7 से 2, 7 से 20. ओके. बेस 50, 10. So it's 130 into 17. So the final answer is actually your 2210 hectare. So the correct option is option D. I hope everybody has understood. We have already done absolutely similar problems in our free course that we have done so far. Okay. I hope there is no problem on your part. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप ऑन योर स्क्रीन. किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है? आई गेस अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज 1 lakh hectare. The cultivable command area is 75% of the gross command area. The intensities of irrigation for Kharif and Rabi are this and this. The duties of this and this. The discharge at the head of the canal considering 20% provisions for loss is how much? Quickly let me know in the live chat section that what is the correct answer to this question. Already we have done and we are only going to solve the questions mostly from those particular chapters which we have covered. देखो 4 दिन में तो पूरा इरिगेशन कभी भी कवर नहीं हो सकता है, तो ओनली जो पार्ट हम ऑलमोस्ट कवर किए उसी में से क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व कर रहे हैं आज इस मॉक टेस्ट में टू गेट अ प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ योर्स. प्लीज टेल मी व्हाट्स द आंसर. देखते हैं सर कि कौन सही जवाब देते हैं मुझे. सबसे पहले बोल चुके हैं गैस, ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज 1 lakh hectare. दिस इज ग्रॉस, राइट. 10 to the power 5 हेक्टेयर. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कल्चरेबल कमांड एरिया. गाइस मैंने इन सारे चीजों का फर्क ऑलरेडी आपको बता दिया था. जो लोग क्लास किए थे डेफिनेटली उनके लिए बहुत बहुत अच्छा है, बट जो लोग नहीं किए उनके लिए यही बस गुजारिश है कि क्लास कर लेना, अभी भी वक्त है, सुधर जाना. ओके. 75% ऑफ द ग्रॉस कमांड एरिया सर है कल्चरेबल कमांड एरिया. तो कल्चरेबल कमांड एरिया कितना है सर? 1 लाख का 75% माने हैं 75,000.
hollow sign walk. 75,000 hectare is the culturable command area. Now they are saying is that intensity of irrigation. हम लोग intensity of irrigation का क्या मतलब जानते हैं? Intensity of irrigation का मतलब जानते हैं कि कितना actually culturable में कितना एरिया एक्चुअली सर खारिफ का इरिगेशन हो चुका है, कितने एरिया पे, एंड रवि का इरिगेशन कितने पे हो चुका है, कितना एरिया के ऊपर. दैट पर्टिकुलर थिंग, स्मॉल सीसीए बाय कैपिटल सीसीए इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन. हमने वो लॉल करके बोले थे, इफ यू रिमेंबर राइट. तो सर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर खारिफ इज 50%. इसका मतलब सीसीए डिवाइडेड बाय सीसीए क्या, सीसी इक्वल टू 80% ऑफ जीसीए. ऐसे किसने कहा सर? ये तो जनरली हम लेते हैं, जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो यहाँ पे तो दिया हुआ है, हर केस में थोड़ी सेम होगा. फाइन, तो सीसीए बाय सीसीए इंटू 100%, राइट. सो दैट इज बेसिकली 50%. तो यहाँ पे सिर्फ यही काफी है. तो आपका कैपिटल सीसीए जो है सर दैट इज 75,000 हेक्टेयर. ये है टोटल आपका सीसीए, यानी कि कल्चरेबल है. उसमें से आपने सीसीए फॉर खारिफ, मतलब खारिफ जो है कितने एरिया पे इरिगेशन कर चुके हैं सर? 50% पे, यानी कि 37,500 हेक्टेयर पे आप खारिफ का इरिगेशन कर चुके. सिमिलरली 0.55 is CCA for Ravi divided by capital CCA. Therefore CCA for Ravi कितना हुआ सर? मतलब रवि क्रॉप आप कितने एरिया के ऊपर इरिगेट कर चुके हैं गाइस? 75,000 is the CCA and this is 0.55. Okay, so 75,000 into 0.55 is how much guys? Please tell me what's the answer. 75,000 into 0.55, that is 41,250 हेक्टेयर. तो सर एरिया फॉर खारिफ आ गया आपके पास, एरिया फॉर रवि आ गया. अब दोनों का ड्यूटी भी दिया हुआ है, ड्यूटी फॉर खारिफ एंड ड्यूटी फॉर रवि. ओके, दोनों ही क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो अगर आपके पास एरिया पता चल गया और ड्यूटी भी पता है तो डेफिनेटली आपको डिस्चार्ज कितना चाहिए वो भी पता होगा. तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर खारिफ सीजन. इट इज द एरिया रिक्वायर्ड फॉर खारिफ सीजन डिवाइडेड बाय द ड्यूटी रिक्वायर्ड फॉर खारिफ सीजन. व्हाट इज द एरिया रिक्वायर्ड फॉर खारिफ सीजन? 37,500. इतने एरिया के ऊपर आप इरिगेशन कर चुके हो. व्हाट इज द ड्यूटी फॉर खारिफ? ड्यूटी फॉर खारिफ इज 1200 हेक्टेयर पर क्यूमेक. So the answer over here is guys 375 by 12, so it's 31.25 cubic. It is the discharge required for hectare को मैं हेक्टेयर पर क्यूमेक से डिवाइड कर रहा हूं, so the answer is in cubic. Talking about the discharge for Ravi, so this by this, what is the discharge for, what is the area for Ravi guys? Can you please tell me? The area for Ravi is 41,250 divided by duty for Ravi. What is the duty for Ravi guys? Duty for Ravi is 1400 hectare per cubic, 1400 hectare per cubic. So please tell me what's the answer. That is कितना आ रहा है सर आंसर जो है टोटल? प्लीज टेल मी. It's coming 29.46 if I am not wrong, right? तो आप मुझे बताइए, आपको खारिफ सीजन में फील्ड पे 31.25 क्यूमेक का डिस्चार्ज चाहिए और रवि सीजन में फील्ड पे 29.46 क्यूमेक का डिस्चार्ज चाहिए. तो आप जो इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करोगे वो कितना क्यूमेक डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करोगे? द डिस्चार्ज विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? The discharge will be obviously based on the maximum out of the two. Understanding what I'm trying to say? क्योंकि खारिफ सीजन है विंटर, सॉरी मॉनसून, एंड रवि है सर विंटर. तो अगर सर मैं 31.25 के लिए डिजाइन कर दूं तो ऑब्वियस बात है कि ये दोनों जो सीजन है, दोनों सीजन में ही सफिशिएंट पानी सप्लाई करने की काबिल रहेगा. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो इफ आई डिजाइन दिस पर्टिकुलर इरिगेशन सिस्टम फॉर 31.25 cubic discharge, it's more than sufficient, right? Understandable to you? तो चलिए वही करते हैं. इसका जो डिजाइन डिस्चार्ज है, let's do it for 31.25 cubic. Okay.
31.25 क्यूमेक इज द डिजाइन डिस्चार्ज। बात सर ये डिजाइन डिस्चार्ज कहां पे है सर? ये डिस्चार्ज फील्ड पे मुझे चाहिए। आई वांट दिस डिस्चार्ज इन द फील्ड। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सर मुझे हेड ऑफ द कैनल पे डिस्चार्ज चाहिए, कंसिडरिंग 20% लॉस एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो बेसिकली आपका हेड ऑफ द कैनल पे अगर डिस्चार्ज QC है, वहां से 20% लॉस होके वो फील्ड पे आ रहा है और फील्ड पे आपको 31.25 क्यूमेक डिस्चार्ज चाहिए। जस्ट लाइक अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी जिसमें 20% डिस्काउंट लगा है, डिस्काउंट लगने के बाद प्राइस हुआ है 80 रुपए, तो एक्चुअल प्राइस उसमें मार्क कितना था? 80 रुपए नहीं, कितना? 100 रुपए। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कैसे निकाले आपने? सर दिस डिस्चार्ज इन द कैनल, इस पे 20% का डिस्काउंट हुआ, लॉस हुआ, लॉस के बाद आपका फील्ड पे डिस्चार्ज जो है वो आ रहा है 31.25। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिस्चार्ज इन द कैनल? So it's coming 39.06. Understanding? So the correct option is option, guys, C. 39.06 क्यूमेक। अंडरस्टैंडेबल टू यू? समझ में आ गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में, इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, डू लेट मी नो इन द लाइव चैट सेक्शन। और सर लेक्चर पे नए हो तो जरूर जरूर सर लाइक कर देना इफ यू रियली वांट। अंडरस्टैंडेबल? समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? किसी को जरा से भी कोई भी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो इन द लाइव चैट सेक्शन। एनी स्लाइटेस्ट कंफ्यूजन? आई होप नॉट, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कैसे सर? रिपीट कर दीजिए। कैसे सर? क्या क्या मतलब है? 31.25 तक तो समझ में आ गया ना? क्या प्रॉब्लम है 31 तक? इसलिए बोलता हूं क्लास करो। क्लास किए बिना अचानक से प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाते हो, सिर्फ समझ लेते हो कि एक सब बस सेशन अटेंड कर लूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग और सारा प्रॉब्लम मुझे आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए बोलता हूं सर क्लास अटेंड करो पहले। 31.25 तक समझ में आया होगा सर, ये खारिफ है ना? अब पॉइंट को समझो सर। मैं पूछा हूं कैनल में मुझे कितना डिस्चार्ज चाहिए, आप क्या निकाले हो? 31.25। फील्ड में कितना डिस्चार्ज चाहिए, यह मैं पूछा ही नहीं हूं आपसे। आपसे मैं पूछा हूं कैनल में कितना डिस्चार्ज चाहिए। कैनल में जितना भी डिस्चार्ज चाहिए उसका 20% लॉस हो गया। देखो लिखा हुआ है, what is the discharge at the head of the canal considering 20% provisions for transmission loss and all these things etc. मतलब क्या? इट्स जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया सर एक प्रोडक्ट ऐसा है, मान लीजिए जिसमें 20% का डिस्काउंट लगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? मान लीजिए एक प्रोडक्ट का MRP है X, ठीक है, और इस MRP पे 20% डिस्काउंट लगा सेल के टाइम पे, और सेल पे आपका इसका जो प्राइस आया वो 80 रुपया आया। तो मैं बोल रहा था कि इस प्रोडक्ट का MRP कितना है, तो आप कैसे करते हो? तो आप बोलते हो सर X रुपीज पे 20% डिस्काउंट लगा, X रुपीज वॉज द MRP, इस पे 20% का डिस्काउंट लगाया मैंने, राइट? लगा दिया भाई डिस्काउंट। एब्सोल्युटली नॉट अर्नब, एब्सोल्युटली नॉट। X माइनस एक्स इंटू क्यू, मैं अभी बता रहा हूं, X माइनस एक्स इंटू 20/100। मान लो मैं बताया सर 80 रुपये प्राइस हुआ, ठीक है, डिस्काउंट के बाद। तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि MRP कितना था, तो MRP वॉज X, दैट इज 80/0.8 यानी कि 100 रुपीज। समझ में आया? अच्छा, अर्नब कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है समझो। आप कर रहे हो उल्टा। मैं आपको अगर बोलता हूं कि डिस्काउंट के बाद प्राइस आया 80 रुपए, 20% डिस्काउंट के बाद, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है? तो आप 80 का 20% करते हो। आप जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 80 + 80 का 20%, विच इज रॉन्ग, क्योंकि 20% 80 के ऊपर कभी लगा ही नहीं है। डिस्काउंट हम MRP के ऊपर लगाते हैं, जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पे नहीं। अंडरस्टैंडिंग? आप कर रहे हो क्या, ये 100 है तो वो 120 है, ये गलत है। अंडरस्टैंडिंग? डिस्काउंट 100 पे लगा है, 100 पे 20% का डिस्काउंट लगने के बाद 120 आया है। तो अगर आप बोलते हो कि डिस्चार्ज इन द कैनल इज 120, तो 120 का 20% होता है 24, मतलब 96 रुपीज इज गोइंग टू बी द योर 96 is going to be the discharge in the field, not 100, right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। इट्स अ क्वेश्चन, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला। तो सर देखते हैं कि आप लोगों को ये फॉर्मूला आता है कि नहीं,
किसी को पता है कि नहीं? Otherwise I will tell you, don't worry about that. The time required to irrigate a strip of area 0.203 hectare by a stream discharge of 0.043 cubic to provide an average depth of 6.35 centimeter to the field is dash minute. तो इसका सर एक फॉर्मूला आता है मार्केट में. Excuse me please. If you know that particular formula, the question is very, very easy. If you don't know the formula, it's difficult. Okay. So the formula is actually y by f ln q by q minus f into a. Thank you, Kennedy. Your name is Kennedy. Okay, fine. Okay. So t is equal to y by f ln into q divided by q minus f. अभी तो बस शुरू हुआ है, अभी बहुत सारे आने वाला है. You know, like 60 mark series coming soon actually. From August it's launching actually, 60 mark series. So let's see. T is equal to y by f ln q by q minus fa. बोलिए सर, this is the formula, right? Now what is this y actually? Y is the depth of the water actually. Average depth of water in the field is y. F is what? It is the average rate of infiltration. देखो y और f जो है, इन दोनों के बेसिस में ही t का यूनिट निर्धारित होती है, क्योंकि y का यूनिट इसमें सेंटीमीटर, f का यूनिट है सेंटीमीटर पर आवर. तो ऑब्वियस बात है t का यूनिट तय हो चुका है गाइस, आवर, राइट? क्योंकि ये अंदर जो भी चीज है वो ln में है. लेकिन यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, डिस्चार्ज और f इंटू ए, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी आप एक को दूसरे से माइनस कर पाओगे. यूनिट का गेम है गाइस. बी केयरफुल एंड लिसन टू द क्वेश्चन, चेक द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, राइट? सो प्लीज टेल मी, y इसको रखो अब बाहर, 6.35 ये 5 है, ln q डिवाइड बाय q माइनस f है. व्हाट इज q गाइस? q दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.043 क्यूमेक. That is equal to how much मीटर क्यूब पर आवर इंटू 3600 कर दो तो मीटर क्यूब पर आवर में आ जाएगा आंसर, राइट? क्यों मैं मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट कर रहा हूं, अभी समझाते हैं आपको. सो द आंसर इज 154.8 मीटर क्यूब पर आवर. दिस इज द डिस्चार्ज, राइट? अब एरिया के बारे में बात करते हैं. एरिया है 0.203 हेक्टेयर एंड यू नो इन मिनट्स आपने आंसर दिया कितना, 81.276. आई होप इट्स करेक्ट. लेट्स सी. into 10 to the power 4, you know that 1 hectare is equal to 10 to the power 4 meter square. So from that it's coming actually 2030 meter square. That is your area. एरिया जो है सर वो हो गया आपका 2030 मीटर स्क्वायर. आया समझ में? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? फाइन. दिस इज द एरिया. अब एरिया है मीटर स्क्वायर में, ठीक है, और एफ है आपका 5 सेंटीमीटर पर आवर, राइट? मतलब है 0.05 मीटर पर आवर. तो एफ इंटू ए का यूनिट देखो मीटर क्यूब पर आवर में आ रहा है क्या? मैंने आपको पहले ही बोला, देखो क्यू और एफ इंटू ए, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. क्यों? अदरवाइज आप एक को दूसरे से माइनस नहीं कर सकते हो ना. आप कभी देखो 5 किलोमीटर से 10 केजी माइनस कर दिए, ऐसे भी हो सकता है क्या? नहीं ना. तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. 5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर माइनस कर सकते हो, 5 किलोमीटर से 2 केजी माइनस नहीं कर सकते हो ना. अंडरस्टैंडिंग? सो क्यू और एफ इंटू ए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. तो क्यू का यूनिट है 154.8 मीटर क्यूब पर आवर और एफ इंटू ए का भी यूनिट है सर मीटर क्यूब पर आवर, राइट? सो प्लीज टेल मी व्हाट्स द आंसर. अगेन दिस पर्टिकुलर सेशन इज ओनली फॉर दोज पीपल हु वांट टू लर्न. अगर आप इस उम्मीद से आए हो कि अनिरुद्ध सर आएंगे, 2-4 क्वेश्चन में टिक मारेंगे और चले जाएंगे, ओके, तो प्लीज लीव द सेशन राइट नाउ बिकॉज दिस सेशन इज फॉर दोज पीपल हु वांट टू लर्न. सो 101.5 मीटर क्यूब पर आवर. ओके, डिस्चार्ज इज व्हाट? 154.8 101.5. ओके, सो प्लीज टेल मी व्हाट्स द आंसर यू आर गेटिंग. यहां पे आंसर आपको आवर में मिलेगा, इंटू 60 कर देना
तो डायरेक्ट आपका आंसर मिनट में आ जाएगा जो आपसे पूछा है। तो चलिए देखते हैं कितना है आंसर। 6.35 by 5 into ln 154.8 154.8 minus 101.5. So it's coming 1.35 hour into 60. It's 81.244. Yeah, it's very close actually. 81.276 who have answered. It's very close. 81.24 minute. Very, very close. I would say that's the correct answer. 81.25 almost. Fine. Absolutely correct. Fine. कोई दिक्कत नहीं. So 81.24 hour minute. समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. It's an MSQ question, guys. It's an MSQ question where multiple statements are correct. Okay. So please tell me, guys, whether this particular answers are correct or not. Our regime channel will have side slopes of value 0.5 H is to 1V. Lacey's regime formula is applicable to regime channels with sediment concentration more than 5000 ppm. For a Lacey regime channel, the Manning roughness coefficient is estimated by Stickler's formula. Something like that is basically given to you, and you have to tell me that which out of the options are correct. For a Lacey regime channel, the Manning roughness coefficient estimate, the mean velocity in a Lacey channel is proportional to r to the power 2 by 3. It's an MSQ question. So please tell me that whether all options are correct. A, B, मतलब जो भी है सर वो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट है. Please tell me quickly so that we can carry forward towards the next question. Okay. Anyone, please. Arnav is saying D, comma B. मतलब B and D you are saying are the correct answers. Okay, rest of the people, please. A and C. Okay. Anyone else? A and C correct statement. Fan club is saying A, C, D. चलिए देखते हैं सर एक एक करके. Fine. The first one is a regime channel will have side slopes of value 0.5 H is to 1V. Yes, it is normally assumed like that कि एक particular trapezoidal channel जो कि regime है उसमें side slope normally आपको मैंने बोला भी था question में कि if nothing is mentioned in the question we considered slope to be 0.5 H is to 1V. Second is Lacey's regime channel is applicable to regime channels with sediment concentration more than नहीं सर less than 5000 ppm. जहां पे sediment concentration 5000 ppm से कम है उस particular channels के लिए Lacey's regime formula is applicable. For a अच्छा चलो ये तो एविडेंट है. डी तो एकदम ही एविडेंट है. द मीन वेलोसिटी इन अ लेसी चैनल इज प्रोपोर्शनल टू. क्या ये सही है गाइस? मीन वेलोसिटी इन अ लेसी चैनल इज प्रोपोर्शनल टू r to the power 2 by 3. इज इट करेक्ट और नॉट? या फिर ये करेक्ट नहीं है? बोलो. मीन वेलोसिटी इन अ लेसी चैनल इज करेक्ट और नॉट? r to the power 2 by 3 से ये बोल रहे सर एक्चुअली प्रोपोर्शनल है. इट्स नॉट राइट. अच्छा चलिए देखते हैं सर मतलब है या नहीं, क्या पता. एनीवन? तो वो तो सर मैनिंग्स इक्वेशन है. ये तो बोला है आपको लेसी चैनल. तो आपको क्या लगता है सर? वो तो जो आप बोल रहे हो v इज इक्वल टू 1 बाई एन r टू दी पावर 2 बाई 3 s टू दी पावर हाफ, दैट इज तो मैनिंग्स इक्वेशन. अंडरस्टैंडिंग. बट यहां पे तो आपको लेसी चैनल बोला गया. क्या ये सही है या गलत है? क्या रिलेशन है r के साथ v का? चलिए देखते हैं सर. व्हाट्स द रिलेशन ऑफ r एंड v? r is equal to 5 by 2 v square by f. Understanding what I'm trying to say? So basically here r is proportional to v square, guys. Understanding what I'm trying to say? So v is proportional to r to the power half and nothing else. Be careful. So it is not the correct answer. And Lacey के equation में हम Manning's का formula help नहीं लेते हैं. If you remember, मैंने आपको बताया था Manning's equation, Carter's equation, इस सारे का सारे जो help है वो हम लेते हैं Kennedy's equation में. If you remember, Kennedy की equation में सर हम help लेते हैं इससे. मैंने बोला था ना Kennedy को खुद पे भरोसा नहीं था सर, इसलिए मैंने Manning और कटर इसके पास जाके बोलता था भाई तेरा आंसर कितना आया,
मेरा इतना है, चलो सर मैच करते। लेसी का ऐसा कुछ था क्या? कुछ नहीं था लेसी का ऐसा, खुद का आत्मनिर्भर फॉर्मूला था लेसी का, राइट। फॉर अ लेसी रेजिम चैनल द मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट इज एस्टिमेटेड बाय स्ट्रिकलर्स फॉर्मूला। क्या लगता है सर आपको, इट इज करेक्ट और नॉट? For a lacy regime channel, the Manning's roughness coefficient is estimated by Strickler's formula. Anyone in the live chat section, please, who would tell me the correct answer? Is it correct or not correct, guys, please? Sir, again, on the same logic, this is absolutely correct कि Manning's roughness coefficient is estimated by Strickler's formula. ये correct है, guys. ये जो पोर्शन है ये करेक्ट है कि मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट इज एस्टिमेटेड बाय स्ट्रिकलर्स फॉर्मूला, ये सही है। कैसे? जो आप जानते हो आई गेस, क्या होता है बाय द वे, व्हाट्स द वैल्यू फॉर दिस लाइक मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट ऑल दिस थिंग्स, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? कैन यू एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट्स द वैल्यू फॉर दिस? दिस n 1/24 d टू द पावर 1/6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही होता है ना फॉर्मूला। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। आप बोलोगे क्यों सर लेसिस रेजिम चैनल में मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट कैसे आ रहा है? मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट निकाल रहा हूं सर, फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं। अंडरस्टैंडिंग? आपको याद होगा लेसी के जो फॉर्मूला है, लेसी के जो फॉर्मूला है वहां पे उन्होंने डायमीटर को, यानी कि जो एवरेज बेड डेप्थ है, बेड की जो डायमीटर है उसको इंपॉर्टेंस दिया था, राइट। अंडरस्टैंडिंग? उसको इंपॉर्टेंस दिया था, राइट। तो ये वो इंपॉर्टेंस का नमूना है सर, 1/24 d टू द पावर 1/6। इसमें इसके जरिए सर हम बेसिकली फॉर्मूला निकालते हैं। सो आई वुड से दैट A and C both are correct, and this is how it basically goes over here. Other are wrong. B and D both are wrong in this particular occasion. Next question: wheat is to be grown in the field having a value of field capacity equal to 30% and permanent wilting point of 15%. If the dry unit weight of soil is 20 kilonewton per meter cube, the maximum storage capacity will be how much? Quickly प्लीज टेल मी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। हम कई सारे प्रॉब्लम इस तरीके से कर चुके, सो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एटलीस्ट। प्लीज टेल मी क्विकली व्हाट्स द आंसर। मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी मतलब आपसे क्या पूछा गया है दोस्त? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अवेलेबल वाटर कितना है एक्चुअली। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कितना मैक्सिमम ये स्टोर कर रहा है, कितना। 100% बैटरी। अरे बैटरी कॉन्सेप्ट याद है ना सर सबको, जो लोग सर क्लास कर चुके हैं सर? ओके एवरीबॉडी आई होप रिमेंबर्स कि बैटरी टोटल सर कितना है ये पूछा गया आपसे, अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी, राइट। तो बेसिकली DAW इसमें क्या फॉर्मूला होता है गाइस? गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू इनटू कैपिटल D FC माइनस PWP। व्हाट इज गामा सॉइल? गामा सॉइल इज 20 डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है तो सर सब टोटल सेंटीमीटर में सर, तो 10 मान लो, 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब मान लो। कैपिटल D इज द डेप्थ ऑफ द सॉइल और द डेप्थ ऑफ द रूट जोन। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में कुछ भी फॉर्म में दे हुआ सकता है। फील्ड कैपेसिटी इज 0.3 एंड परमानेंट फील्डिंग पॉइंट इज 0.15। सो इट्स द आंसर इज 24 सेंटीमीटर। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप रिमेंबर। समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? प्लीज लेट मी नो इन द लाइव चैट सेक्शन। समझ में आया सबको गाइस? कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में? Everybody understood the problem कि the answer is your 24 centimeter। ठीक है सर, अगले प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। You please tell me what's the correct answer to this question. During a particular stage of the growth of the crop, consumptive use, ये exactly pure battery concept के ऊपर question है। Consumptive use of water is 3 mm per day. If the amount of water available in the soil is 25% of 80 mm depth of water, what is the frequency of irrigation? Quickly. फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन मतलब बैटरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन मतलब बैटरी कॉन्सेप्ट कहता है कि कितने दिन बाद आप चार्ज करोगे। जो लोग क्लास कर चुके हैं डेफिनेटली उनको ये क्वेश्चन करने में 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। इफ यू हैव डन माय क्लास एंड अंडरस्टूड द बैटरी कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 10 seconds of time maybe. Yes, Pankaj Yadav, acha, saying C, okay, fine. Arnab is saying C.
Any other people who would like to give the answer? Yeah, C, fan club, fine. चलो, तो इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अल्ट्रा इजी क्वेश्चन गाइस. तो देखते हैं सर. तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन पूछा गया है. अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, अवेलेबल मतलब क्या, बैटरी अभी बचा हुआ है. 25% का बैटरी बचा हुआ है गाइस. टोटल बैटरी आपका कितना है, 80 mm. 25% अभी बचा हुआ है बैटरी. इसका मतलब क्या रे, तुम 75% बैटरी जब खत्म होता है, राइट, उस टाइम पे पानी डालते हो, राइट. वही पूछा है ना आपको कि कितने दिन बाद आप पानी डालोगे उसमें. तो आप समझ रहे हो, अभी 25% बचा हुआ है और अभी पानी डालने की बात चल रही है. मतलब सर आप 75% बैटरी खत्म होने का इंतजार किए हो, राइट. 80 mm का 75% मतलब कितना होता है, 60 mm. तो आप इंतजार किए कि भैया 60 mm बैटरी कब खत्म हो जाए, फिर मैं पानी डालूंगा, राइट. एक दिन में कितना बैटरी खत्म हो रहा है, 3 mm. तो 60 mm बैटरी कितना दिन में खत्म होगा, 20 दिन में. तो 20 दिन के बाद आप पानी डालोगे, रिचार्ज करोगे. अंडरस्टैंडिंग? कोई प्रॉब्लम है समझने में गाइस? अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू पीपल? प्लीज लेट मी नो इन द लाइव चैट सेक्शन. कोई कंफ्यूजन, एनी पर्टिकुलर कंफ्यूजन, इफ यू डू हैव प्लीज डू लेट मी नो इन द लाइव चैट सेक्शन. समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है एकदम चकाचक? फाइन, आगे बढ़ते. A lift irrigation scheme using a discharge of 100 meter cube per hour, okay, is planned to raise a crop with an average delta of 0.4 meter. Intensity of irrigation is 50%. Assuming 3600 hours of working of the tube well for a year, the culturable command area is how much? Quickly, please tell me. What's the area over which the entire irrigation has taken place? You have to answer me quickly, please. Tell me the answer. बाय द वे, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इज पर्टिकुलर स्कीम. यहाँ पे मैं बस नॉलेज के लिए आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ ऑल्दो कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ. लिफ्ट एंड फ्लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इरिगेशन स्कीम्स. लिफ्ट मतलब है जहां पे आपको वाटर को लिफ्ट करना होता है, मतलब आपका जो फील्ड है वो ऊपर है और वाटर का सोर्स नीचे है, राइट. एंड इसका जस्ट उल्टा होता है फ्लो इरिगेशन, मतलब आपका जो वाटर का सोर्स है वो ऊपर है एंड जो फील्ड है वो नीचे, वहां पे वाटर अपने आप आएगा, फ्लो, ग्रेविटी. सो दैट्स फ्लो स्कीम एंड इट्स लिफ्ट स्कीम, राइट. सो प्लीज टेल मी गाइस, व्हाट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. जो लोग सर फॉर्मूला लगाने की कोशिश शायद करेंगे, शायद उनसे ये क्वेश्चन नहीं बने. आई डोंट नो, मे बी शायद बन भी जा सकता. इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिया हुआ है गाइस 50%. सो प्लीज टेल मी दैट द कल्चरेबल कमांड एरिया इज हाउ मच. देखते हैं कितने सारे लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते. इतना टाइम लग रहा है सर, क्या बात है? सो मच ऑफ टाइम इज एक्चुअली गिवन. कल्चरेबल कमांड एरिया सी आ रहा है सर कुछ लोगों का. फाइन, देखते हैं आंसर वेदर इट्स सी और नॉट. आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल बाय द वे गाइस. चलो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए. हो गया सर. चलो, ड्यूटी इनटू डेल्टा सभी लोग जानते हैं 864 B होता है, राइट. इसमें ड्यूटी का यूनिट हेक्टेयर पर क्यूमेक में होता है, डेल्टा का यूनिट सेंटीमीटर में होता है और बी का यूनिट डेज में होता है. ठीक है, तो चलिए, डी का मतलब है एरिया बाय डिस्चार्ज इनटू डेल्टा, 864 इंटू बी. यूनिट्स आर क्लियर. तो इसमें एरिया सबसे पहले किस में होना चाहिए, हेक्टेयर में, और हेक्टेयर में ही मांगा है आपसे. वाह, बढ़िया, अच्छी बात है. ए इज इक्वल टू, लेकिन डिस्चार्ज जो है ये आपको क्यूमेक में होना चाहिए, राइट, मीटर क्यूब पर सेकेंड में होना चाहिए. सो डेल्टा इज इक्वल टू गाइस, इट्स गोइंग टू बी हाउ मच एक्चुअली, सॉरी, ए इज इक्वल टू गोइंग टू बी लाइक 864 BQ बाय डेल्टा. यूनिट का ध्यान रखना. व्हाट इज बी, द बेस पीरियड 3600 आवर्स, मतलब 3600 बाय 24, इतना डेज एक्चुअली, इनटू डिस्चार्ज. डिस्चार्ज इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब पर आवर.
मीटर क्यूब पर आवर दिया हुआ है, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, कर लिया आपने, मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट। जी, डेल्टा, डेल्टा इज इन सेंटीमीटर, ये 0.4 मीटर है और ये सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया? एंटायर प्रॉब्लम इज क्लियर। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट्स द करेक्ट आंसर गोइंग टू बी। 3600 कट गया, इट्स 864 इंटू 100, 24 इंटू 40, एक दो कट गया सर। सो ये 216 है एंड 24 से कितना होगा सर, ये कट करेगा तो 9, राइट। हाँ, सो इट्स 90 हेक्टेयर। तो मतलब क्या, 90 हेक्टेयर एरिया में आपका एक्चुअल इरिगेशन हो चुका है, राइट। लेकिन आपसे पूछा गया है कल्चरेबल कमांड एरिया कितना है व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज 50%। आप जानते हो सर इस लाइन का जरूरत कब है, यही तो सर दिख रहा है आपको जरूरत। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो आप नापते हो वो है कल्चरेबल कमांड एरिया पर ईयर। नॉर्मली एक साल में आप कितना इरिगेट कर चुके हो, या फिर समथिंग लाइक दैट ऑन अ पर्टिकुलर सीजन यू कैन से, राइट। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज 50%, 0.5 is small CCA by capital C। स्मॉल CCA is 90 हेक्टेयर, 90 हेक्टेयर में अभी इरिगेशन हो चुका है, तो कैपिटल CCA is 180 हेक्टेयर। तो 180 हेक्टेयर में एक्चुअली इरिगेशन हो सकता है, कल्चरेबल कमांड एरिया। इन 180 हेक्टेयर एरिया इरिगेशन इज पॉसिबल, and out of that in 50% of the area irrigation is happening. There are difference in the two terms, I hope you understand it, right? Okay, the base width of solid gravity dam is 24 meter. The material of the dam has a specific gravity of 2.6 and the dam is designed as an elementary profile ignoring uplift. What is the approximate allowable height of the dam? Please tell me what's the correct answer. The base width of a solid gravity dam is 24 meter. The material of the dam has a specific gravity of 2.6. Dam is designed as an elementary profile ignoring uplift. What is the approximate allowable height of the dam? So I think you people know it. If you don't know it, let me tell you actually कि dam का जो allowable height and allowable जो base होता है, base width basically, it is taken as the maximum of two things. क्या आप जानते हैं वो दोनों चीजें क्या है? फर्स्ट इट्स h बाय रूट ओवर ऑफ g माइनस c एंड h बाय म्यू इंटू g माइनस c। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ b मस्ट बी दैट। अब इस क्वेश्चन में म्यू का कोई जिक्र नहीं किया गया है, राइट। सो वी आर गोइंग फॉर दिस फॉर्मूला that b must be more than equal to h by root over of g minus c, where g is the specific gravity of the material of the dam, that is 2.6 normally concrete, and this c is nothing but the uplift coefficient. It is taken as 0 if we ignore uplift and it's taken as 1 if we consider uplift. Okay, so ignoring uplift, so that means c is taken as 0. सो b मस्ट बी मोर देन, यहां पे सर विड्थ जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 24, आपको h मांगा है, g जो है वो है 2.6, अपलिफ्ट को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम हियर प्लीज? सो h is coming as 24 into 2.6, so it's coming 38.7 meter. 38.7 meter, so the option is B. Understandable to all of you people. समझ में आ गया सबको, कोई confusion नहीं है किसी को। Normally B is taken as the maximum of h by root over g minus c and h by mu into g minus c, दोनों में से maximum. But इस question में mu के बारे में कुछ नहीं बोला है, right? So actually the only formula they are talking about is this one. So B must be more than h by root over g minus c and all these things, right? चलो आगे बढ़ते। In a lacy regime channel, the discharge is 100 meter cube per second and the longitudinal slope is 0.0002. The average diameter of the particles in the bed is how much mm? Up to 3 decimal place you have to answer. If you are new to this channel, guys, don't forget to hit the like button if you are enjoying the session, and don't forget to share this with your other friends so that they can also get benefited out of it. Okay, so please tell me guys that what's the correct answer. जल्दी बताइएगा प्लीज।
लेसी रेजिम चैनल है, डिस्चार्ज 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरेज डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स इन द बेड इज हाउ मच गाइस. डोंट फॉरगेट माय कोड ANR10 which you can use to get the maximum benefits out over here please, and to be under my guidance throughout your preparation journey. अगर आप मेरे गाइडेंस में रहना चाहते हैं throughout your preparation journey until you test the success, so definitely use the code ANR10 and join my courses over Unacademy. Quickly, the average diameter of the particles in the bed is how much? Quickly, थोड़ा जल्दी बताइएगा प्लीज. I don't have all day for you people please. नो आंसर्स, कम ऑन. स्लोप का एक्सप्रेशन को जरा देखते हैं. व्हाट्स द एक्सप्रेशन फॉर स्लोप इन अ लेसी रेजिम चैनल? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द डे बिफोर यस्टरडेज क्लास, राइट? व्हाट्स दैट? f to the power 5 by 3 3340 q to the power 1 by 6. इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आपको क्या क्या चीजें ऑलरेडी पता है? स्लोप पता है, डिस्चार्ज पता है, तो एक ही चीज केवल मात्र नहीं पता है, वो है f. एंड यू नो व्हाट इज f? f इज 1.76 रूट ओवर dmm. तो once you get your f value, definitely you can get your d value. It's as simple as that, right? So please let me know in the live chat section what's the correct answer you are getting. So already I have received Arnab's answer, that is your 0.500, and also fan club's answer, that is 0.500. So hope that's the correct answer. Let's do it very easily. S का मतलब है स्लोप 0.0002. F आपको पता नहीं है, एंड डिस्चार्ज इज इन क्यूमेक. बाय द वे गाइस, ये अगर दूसरे कोई यूनिट में होता तो उसको आपको क्यूमेक में कन्वर्ट करना पड़ता. 100 to the power 1 by 6. इसलिए बोलते हैं सर क्लास करो पहले, क्लास करने के बाद मॉक टेस्ट में आओ, ठीक है ना? अचानक मॉक टेस्ट में आ जाते हो, इसीलिए नहीं होता है प्रॉब्लम्स. फिर कोसते हो कि यार सर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. ठीक है, कैसे आएगा भैया समझ में सब कुछ? सो इट्स कमिंग 3 और यहाँ पे ऑल द समझने लायक कुछ चीज है, बहुत ही सिंपल सा मैंने चीज बताया. इट्स लाइक वेरी वेरी सिंपल. 0.002 3340 100 to the power 1 by 6. What is f? It's 1.244 is the f value, if I'm not wrong, right? And that is equal to 1.76 into root over dmm. तो dmm क्या हो गया आपका? 1.244 1.76 का होल स्क्वायर. टेल मी. 1.244 1.76 is coming something like that. It's coming 0.4996. एंड इन क्वेश्चन इन लोगों ने जानबूझ के आपको पूछा था, ये गेट का क्वेश्चन है, अप टू 3 डेसिमल प्लेस. दे हैव deliberately asked this question, and trust me, इस क्वेश्चन का कोई रेंज नहीं दिया हुआ था, केवल एक ही आंसर ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ था, एंड दैट वाज 0.500. तो अगर आप इतना मेहनत करके भी 0.499 लिख के आते हो तो आपको 0 मिलेगा. सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स. अब से जो लोग नेग्लेक्ट करते इस बात को, बहुत सारे लोग 2019 20 21 में मेरे इस बात को नेग्लेक्ट कर चुके थे, 22 में भी नेग्लेक्ट कर चुके थे. सर क्या सर ये डेसिमल और ये सर इसके बारे में आप बोलते रहते हो, 2 डेसिमल 3, क्या सर ये छोटा मोटा चीज है सर? ये गेट है गाइस. इसमें जैसे कि इन लोगों ने ना, गौरव कुमार, ही हैज रिटन 0.49, यहाँ पे 0.49 लिखेगा, 0 मिलेगा उसको. ऑल द पूरा कैलकुलेशन सही है, बट रिमेंबर आई ऑलवेज से दिस पर्टिकुलर थिंग, एट अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट गोइंग टू चेक योर पेपर. Human being is not going to check your paper, guys. A computer is checking your paper. उसको जो डेटा फीड किया गया है वही डेटा वो देखेगा. अगर उस डेटा के अंदर आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आपका आंसर, तो इट्स गोइंग टू गिव यू अ 0 एंड नथिंग एल्स. बी केयरफुल, राइट? सो next question is up on your screen. The unlined canal is to be designed using Kennedy's theory for a discharge of 28 cubic. And by the way, guys, I'm not sure how many of you people are actually using the GATE calculator. जो मैं बार बार आप लोगों को बोलता आता हूं कि GATE calculator के बिना अगर आप ये नॉर्मल कैलकुलेटर लेके सॉल्व कर रहे हो तो आप अपना बर्बादी रच रहे हो.
Okay, this calculator has no use in any competitive examination, so please shut this calculator off and try with your GATE calculator, or if you're preparing dedicatedly for ESE, then try without calculator. Okay, don't use this calculator to ruin your future. To do this question, please, if the critical velocity ratio is 1, the depth required research, and I have made already a dedicated video on GATE calculator app and all these things, how to use this and all these things. You can find it out definitely on Google में भी search कर सकते हो, YouTube में, and wherever it's possible actually you can get it. If the critical velocity ratio is 1, the required depth of the channel is how much, guys? 1.35, 1.89, 2.07 and 2.56 meter. Please tell me what's the correct answer. An unlined canal is to be designed using Kennedy's theory for a discharge of 28 cubic discharge क्वेश्चन में दिया हुआ है. कैनल के साइड स्लोप्स भी दी हुए हाफ एंड b by d रेशियो इज 7. ओके फाइन. इफ द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इज 1, मतलब m का वैल्यू है आपका 1. रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ द चैनल पूछा है आपसे, d का वैल्यू पूछा गया है, डेप्थ. आई वांट योर आंसर्स प्लीज क्विकली. Anyone in the live chat section if you can say. सर देखो डिस्चार्ज दिया हुआ है. कैनेडीज फॉर्मूला क्या कहता है बेसिकली? कैनेडीज फॉर्मूला से दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू m into 0.546 into d to the power 0.64. यही कहता है क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर्मूला फ्रॉम कैनेडी. कैनेडी कहता है कि m का वैल्यू है 1 क्रिटिकल वेलोसिटी का, सो द एंटायर एक्सप्रेशन इज रिड्यूस्ड टू दिस, राइट? दिस इज द वेलोसिटी. और मैंने आपको बोला था गाइस, इफ यू रिमेंबर, कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी ही आपका फाइनल वेलोसिटी है एट द टाइम ऑफ डिजाइन. आपका जो मीन वेलोसिटी आएगा मैनिंग कटर से और ये वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाता है, राइट? ऑलरेडी वी हैव डन प्रॉब्लम्स ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी. सो ये एरिया आपको निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ डी, ताकि आपको केवल और केवल डी ही एज अननोन दिखे, बाकी कुछ भी नहीं. तो चलिए देखते हैं. साइड स्लोप दिया हुआ है कैनल का 1/2. नाउ व्हाट इज इट मीन बेसिकली? 1/2 का क्या मतलब है गाइस? 1/2 का यहां पे मतलब है एक्चुअली जो नॉर्मली हम स्टैंडर्ड लेते हैं 0.5 h/1v, राइट? दैट इज योर h/v इज 1/2. चलिए देखते हैं. टेल मी गाइस व्हाट्स द एरिया? h/v is 1/2, right? So please tell me what's the area for this. ये b है 1/2, ये 1 है तो ये 2 है, right? Understanding what I'm trying to say. ये d है, this is your d, right? If I'm not wrong. तो ये सर d है. अगर ये d है तो what's this particular thing guys? ये 2 है तो ये 1 है. तो अगर ये d है तो ये d/2 है. यही तो बोला है ना सर, 0.5 h/1v. इसका मतलब क्या कि अगर तुम 1 वर्टिकली जा रहे हो तो 0.5 हॉरिजॉन्टली में जा रहे हो. तो अगर आप d वर्टिकली जा रहे हो तो 0.5d इधर जा रहे हो, एंड सर 0.5d इधर जा रहे हो, राइट? एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर b. तो प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द एरिया. आप जानते हो कि ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं. By the way, यहाँ पे b/d ratio is given and that is given as 7. Therefore, b is equal to 7 into d. तो आपका जो पूरा एक्सप्रेशन आ गया हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड 7d plus 8d into distance between them. So the answer is coming actually 7.5d square if I am not wrong, right? ये आपका एरिया बन गया. Now discharge is equal to एरिया इंटू वेलोसिटी. डिस्चार्ज जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 28 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी d to the power 0.64. So please tell me, in the right hand side, if you see the question, see the solution, see the equation, there is only one unknown and that's d. d के सिवा और कोई भी unknown यहाँ पे नहीं है. So please tell me what's the answer. d to the power 2.64 is equal to how much? It's 28 by 7.5 into 0.546, coming 6.838. तो d का वैल्यू कितना होगा गाइस?
1 by 2.64. So it's coming 2.07 meter exactly. RISR. So the correct option is option C. I hope everybody has understood and enjoyed this mock test. Good to see you all over here. Thank you for being here for so long, guys. Practice the questions. And again, I'm feeling very, very sorry for those people who could not attend this session and they have missed out a lot of problems. ऐसे ही सर काफी सारे प्रॉब्लम्स को मिस करने के लिए मुझे बिल्कुल फॉलो ना करिए अनअकैडमी ऐप में. एंड गेट में अगर एक खराब रैंक चाहते हो तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे अनअकैडमी ऐप में फॉलो ना करिए. एंड डेफिनेटली सर जो कोर्सेस है मेरे पर्सनल गाइडेंस में नहीं रहना चाहते और भी खराब रैंक लाना चाहते तो बिल्कुल बिल्कुल सर ANR10 कोड का इस्तेमाल ना करिए. ओके एंड सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस फॉर ओके एंड गाइस कल तक जो है 7 जुलाई तक over here is present over here. You can enjoy 39% discounts. We are again going to meet with RCC session pre-stressed concrete part 2. इसके जरिए इसके साथ हम मिलने वाले with at 10 PM actually on Planet Gate YouTube channel, जहां पे आपको 7 मंथ का कोर्स सिंस ओनली 7 मंथ इज लेफ्ट गाइस, तो 7 महीने के भी कोर्स हम लोग लॉन्च कर चुके हैं where we have to pay 41,000 rupees for the iconic के लिए है सर. प्लस के लिए तो सर इसका प्राइस 6 मंथ्स के लिए और भी काफी कम है एक्चुअली. 28,000 में आपका हो जाता है. सो 28,000 के भी कम है, 25,000-26,000 में हो जाएगा 6 मंथ्स, विच इज वेरी गुड. बट आइकॉनिक जहां पे आपको 1:1 गाइडेंस मिलता है और प्रिंटेड नोट्स भी मिलती है 8,000 पेज की, उसके लिए ऑफर वैलिड है कल तक 7 जुलाई तक. तो आपको 7 महीने की फीस भरना है 41,000, 11 महीने की 43, 15 मंथ्स की 47 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ गाइस. ओके एंड देखो प्लस में जो है 6 मंथ्स के लिए आपको भरना पड़ेगा आफ्टर यूजिंग द कोड ANR10. इट्स 28,000. ओके 28,000 समथिंग. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड स्पेशल क्लासेस जो है एवरीडे फ्री क्लासेस चल रहा है ऐप पे. एप्टीट्यूड का चल रहा है अभी 8 तारीख तक एप्टीट्यूड का चलेगा. उसके बाद आई थिंक अगेन फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स या फिर 11th मॉर्निंग ऑनवर्ड्स सम न्यू सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट. सो मीटिंग यू देयर. थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर सो लॉन्ग. फॉलो जरूर कर लेना अगर सुधरना चाहते हो. थैंक यू गाइस. मॉक टेस्ट जरूर ले लेना यूजिंग द कोड ANR10 एंड यूजिंग योर कॉइन्स. टेक केयर. थैंक यू. दिस इज अनिरुद्ध.